السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی کے اس خصوصی اور براہ راست پروگرام کیریئر گائیڈنس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ہمارا یہ جو پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ پیش کرنے کا جو ہمارا اہم مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کیسے اپنا کیریئر بنائیں، کیسے اپنے کیریئر کا انتخاب کریں، کیسے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، یہ ہمارے پروگرام کا اہم مقصد ہے. ہمارے اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں ماسٹر اسکول آف مینجمنٹ NCR دلی، جو شمالی ہندوستان کا بہترین اور مشہور کالج ہے. ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں علی جناب محترم پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب. پروفیسر آپ کا ہمارا خیر ہے، جو کہ گروپ ڈائریکٹر ہے ودیا گروپ آف انسٹیٹیوٹس کے. پروفیسر آپ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کئی ڈگریوں کے حامل ہیں. آج کا ہمارے جو پروگرام کا عنوان ہے کیریئر ان میڈیسن. اگر آپ یہ کہیں گے کہ پروفیسر صاحب کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، کیسے وہ کیریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کریں گے اس عنوان پر، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر صاحب نے خود میڈیکل میں بھی آپ نے ڈگری حاصل کی ہیں، جو کہ ماسٹر اسکول آف ہاسپٹل مینجمنٹ کے تعلق سے آپ کافی وسیع تر تجربہ رکھتے ہیں، اور خود پبلک گارڈن میں جو واکرز ایسوسیشن ہوتی ہیں وہاں پر بھی خود آپ کا خصوصی لیکچر بھی ہوتا ہے. تو ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام کا عنوان میڈیکل کورسز کے تعلق سے، جس میں اگر ہم میڈیکل کورسز میں دیکھیں تو مختلف کورسز ہیں، واسٹ سبجیکٹ ہے، جس میں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھی، یونانی، آیورویدی، فارمیسی، نرسنگ، BPT، ان تمام چیزوں کو ہم شامل کریں گے. آئیے پہلے ایک ہمارے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہوئے ہم بات کریں گے. ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے وعلیکم السلام. کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. حیدرآباد میں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہپور سے. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے کو نا 2 دن سے رات میں خواب میں قرآن شریف اور ایک بزرگ آ رہے ہیں، ان کی خدمت ہم کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے، پروگرام کیریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ ہے. آپ جس تعلق سے جو سوال کر رہے ہیں وہ ہمارا مختلف پروگرام ہوتا ہے، دینی مسائل کوئی اس میں پوچھیں. بہرحال میں پروفیسر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے آپ اس پر شروعاتی بات کہیں. جی ناظرین، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے میڈیکل ایجوکیشن. اس میں ایجوکیشنل اور کیریئر اپارچونیٹیز کیا ہے. ویسے شروعات میں جیسے آپ نے کہا کہ بیسیکلی میرا تعلق مینجمنٹ سے ہے. پچھلے تقریباً 23 سال سے مینجمنٹ میں کئی اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں، تو میرا جو اسپیشلائزیشن رہا پچھلے 15 سال سے وہ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کا، کیونکہ جو تدریسی معاملہ تھا وہ MBA ہاسپٹل مینجمنٹ، ہیلتھ کیئر مینجمنٹ پڑھانے کا موقع پچھلے 15 سال سے مل رہا ہے. اس کے علاوہ جو میڈیکل کالجز میں جو MD کورسز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک MD کورس ہوتا ہے MD ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن، جو ریپیٹڈ میڈیکل کالجز میں ہے. تو پچھلے کئی سال سے میرا بھی پڑھانا ہو رہا ہے MD ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جو ہندوستان کا نمبر 1 میڈیکل کالج ہے وہاں پر. اور NIMS میں بھی کچھ کلاسز ہوتے ہیں، نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. اسی طریقے سے کشمیر میں کالج ہے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، سو وہاں پر تو اس طریقے کے کلاسز چلتے ہیں. اور اپنا میرا ایریا رہا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے، اس وجہ سے یہ جو MBBS کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پوسٹ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل سائنسز میں، ان سے زیادہ تعلق رہا تقریباً پچھلے 12-15 سال سے. تو ناظرین، سب میں پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس اور والدین کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کورس کا مطلب یہ ہے کہ صرف MBBS یا MD کورس. میں یہاں پر بتانا چاہوں گا، میڈیکل ایجوکیشن ہے تو ہم ٹیکنیکلی میڈیکل جو فیلڈ ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سسٹم آف میڈیسن میں. تو میڈیکل سائنسز میں کہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ سسٹمز آف میڈیکل سائنسز، جو MBBS ہے، MD ہے، DM ہے، MS ہے، یہ جو سسٹم آف میڈیسن ہے اس کو ہم ایلوپیتھک میڈیسن کہتے ہیں.
एलोपैथिक मेडिसिन में ये कोर्सेस आते हैं, MBBS, MD, MS, DM और MCH। दूसरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोर्सेस हैं, डिप्लोमा में है DHMS कहते हैं, और बैचलर्स डिग्री है BHMS है, और मास्टर्स डिग्री भी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में। तीसरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो यूनानी मेडिसिन है। यूनानी मेडिसिन जिसमें बैचलर्स डिग्री होती है और मास्टर्स डिग्री भी होती है। जो आमतौर पे जो वेल नोन डिग्री है यूनानी मेडिसिन में, हम उसे BUMS कहते हैं, और मास्टर्स डिग्री है वो MD इन यूनानी मेडिसिन। इसी तरीके से दूसरे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, एक है आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जहां पर क्या है, बैचलर्स डिग्री है और मास्टर्स डिग्री है, और उसमें रिसर्च भी चलती है। उसके अलावा और दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में है नेचुरोपैथी है, और एक वेल नोन MBBS के बाद जो दूसरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो है डेंटल। डेंटल में होता है कि डिप्लोमा भी है, और आमतौर पे जो ज्यादा स्टूडेंट करते हैं वो है BDS, और मास्टर्स लेवल में है MDS में कई स्पेशलाइजेशन है। तो ये तो था कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन के। इससे हट के थोड़े मेडिकल साइंसेस में अलाइड एरियाज भी होते हैं जो सपोर्टिंग एरिया होते हैं, जिसमें से है नर्सिंग का एक एरिया है। नर्सिंग का भी जो एरिया है उसमें डिप्लोमा भी है और डिग्री भी है और मास्टर्स डिग्री भी है। जैसा कि डिप्लोमा इन नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, और मास्टर्स भी कोर्स है MSc नर्सिंग वगैरह। तो और जो अलाइड एरिया है मेडिकल का वो है फार्मेसी, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में आता है। फार्मेसी में भी डिप्लोमा है और बैचलर्स डिग्री है और मास्टर्स डिग्री है। उसके अलावा और दूसरा एरिया है मेडिकल और लैब टेक्नोलॉजी का एरिया है, उसमें भी क्या है, डिप्लोमा है और BSc वगैरह में कोर्सेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ मेडिकल एजुकेशन का जो एरिया है ये बहुत ही वास्ट है, दायरा बहुत बड़ा है, और आमतौर पे स्टूडेंट और पेरेंट का सोचना यही होता है कि मेडिकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ MBBS MD का कोर्स है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो कोर्सेज की तादाद है डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, मैं समझता हूँ 40 से 50 कोर्सेस आपको मिलते हैं मेडिकल एजुकेशन। बिल्कुल, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा या मेडिकल से तालीम हासिल करके MBBS बने या फिर इंजीनियरिंग के जरिए वो इंजीनियर बने, B.Tech M.Tech करे। यहाँ पर जैसा कि आज जो हमारा इंतहाई अहम मौजू है मेडिकल, इसमें जो आपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ताल्लुक से जो आपने कहा एलोपैथिक, होम्योपैथी, अक्सर जो यूनानी डॉक्टर होते हैं जी, उसमें भी BUMS होता है जैसे कि MBBS होता है जी। तो इसकी तालीम का जो सिस्टम है MBBS का और BUMS का क्या फर्क है? अक्सर लोग जो यूनानी डॉक्टर होते हैं उसके मुकाबले MBBS डॉक्टर को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्या फर्क है इसमें? देखिए, ये जितने भी कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, आमतौर पे ये जो एलोपैथी है और यूनानी है और होम्योपैथी है, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये एरियाज पे रिसर्च हुई है कई साल से, और रिसर्च के जरिए इनका जो ट्रीटमेंट है, इनका जो मेडिसिन है, इनके जो दवाएं हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एलोपैथी आम जबान में हम जो कहते हैं वो अंग्रेजी दवा एलोपैथी। तो एलोपैथी का जो डायग्नोसिस है और जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, और इंशाल्लाह उससे मर्ज भी दूर होता है। लोगों का एक परसेप्शन है, और मैं समझता हूँ कि थोड़े तक सही भी है कि एलोपैथी मेडिसिन में खासतौर से जब मेडिसिन परचेस करते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि ये दवा के ये साइड इफेक्ट्स है जी। तो उस तरीके से यूनानी मेडिसिन जो मामला है वो यूनान से शुरू हुआ है, और आमतौर पे क्या है, जो इसके अंदर जो दवा का जो मामला है, ये यूनानी मेडिसिन ये बिल्कुल ही नेचर से इसका ताल्लुक है, जड़ी बूटियों से या हलवे की शक्ल में
कोई सिरप की शक्ल में जो देते हैं, समझे, इसका ताल्लुक नेचर से है और कई 100 साल से एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रहा है। तो लोगों का परसेप्शन है और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है कि यूनानी मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो एलोपैथी मेडिसिन की तरह है, और इसका ये कहा जाता है कि इसमें जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं और नहीं के बराबर होते हैं। तो ये है, मगर लोग का परसेप्शन ये भी है कि क्या है, जो यूनानी मेडिसिन है वो जो असर करती है जरा देर से असर करती है, तो असर का जो तरीका होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू एलोपैथी मेडिसिन। ये पेशेंट्स का, ये जो भी इस्तेमाल करते हैं उनका ये परसेप्शन है। ये तो दो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और इस्तेमाल की जाती है। ये भी देखा गया है कि जो डॉक्टर्स BUMS और मास्टर्स कोर्स कर चुके हैं यूनानी मेडिसिन में, तो वो भी एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस में। बिल्कुल, उनका वो भी मेडिसिन का एक्सपोजर होता है, कभी दो मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर एक खास पॉइंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा। यूनानी मेडिसिन आंध्र प्रदेश में कॉलेज है, यहाँ पर यूनानी मेडिसिन कॉलेज चार मीनार के पास, यहाँ लुकमान कॉलेज है, तो ये वेल नोन कॉलेजेस हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक कंडीशन है कि स्टूडेंट को उर्दू आना जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट उर्दू मीडियम से, मगर एक सब्जेक्ट उर्दू का होना जरूरी है। अब या तो आप उर्दू मीडियम के होंगे, वरना अगर BPC अगर करे हैं तो उर्दू आना जरूरी है। अगर फर्ज कीजिए आप उर्दू मीडियम से नहीं है, इंटरमीडिएट में भी आपको उर्दू अगर नहीं है, तो एक उर्दू का एक एग्जाम होता है, अगर वो एग्जाम आप पास करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे BUMS के लिए। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अभी वक्त चला है उर्दू TV के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक मुख्तसर से वक्फे का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट NCR दिल्ली, जो शिमाली हिंदुस्तान का एक बेहतरीन और मशहूर कॉलेज है। तो आइए, जाने से पहले एक कॉलर लाइन पर आए हैं, उनको शामिल करते हैं, हम ब्रेक पर जाएंगे। हम अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? बताइए क्या सवाल है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरी पोतरी बहुत बिजली है जी, उसके लिए क्या करना? मेरी पोतरी देखिए, हमारे प्रोग्राम में जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं वो प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर नहीं है। अलबत्ता मेडिकल कोर्सेज की अहमियत के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी पोतरी को MBBS एलोपैथी से, होम्योपैथी से या फिर यूनानी आयुर्वेदी से कराना चाहते हैं, उसके ताल्लुक से आप प्रोफेसर साहब से बात कर सकते हैं। आज का हमारा जो उन्वान है उसी के तहत है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए उर्दू TV।